بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. ویلکم بیک زیرو ٹو ہیرو میتھ چینل. آج ہم سی ایس 2025 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر کا ایک ریئلسٹک موک انٹرویو کریں گے. اس ویڈیو میں وہی سوالات شامل ہیں جو سی ایس ایس پینل اکثر پوچھتا ہے اور ان کی کانفیڈینس، بیلنسڈ اینڈ انٹیلیجنس آنسر بھی شامل ہوں گے. اگر آپ سی ایس ایس، پی ایم ایس یا کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو اسے بھی پریس کر دیں، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ انٹرویو نہیں بھی دے رہے پھر بھی آپ کو کم سے کم اپنے لیے اگلے بندے کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے اتنا نالج ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس. تو چلتے ہیں، ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی ویڈیو کو سٹارٹ اپ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے کوشچن ہوگا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. یہ تو ہر انٹرویو کا پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف. مطلب کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، مطلب کتنی آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک سلیقے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کانفیڈینس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ کی کمیونیکیشن سکل کیا ہے، آپ کا مطلب کہ کتنا اپنے آپ کے اوپر کانفیڈینس ہے آپ کو. تو مطلب وہ پہلی جھلک میں نظر آ جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے کانفیڈینس سے بولنا ہے، نہ کہ ڈرتے ہوئے. فل آف کانفیڈینس رہنا ہے. تو اس لیے اس جتنے بھی یہ کوشچن آپ لوگوں کو میں یہاں پہ شیئر کروں گی، آپ نے نا یہ سارے کوشچن پہلے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے، ان کو تیار کر لینا ہے. اگر تو یہی والے آپ لوگوں نے اپنے آنسرز پریپیئر کرنے ہیں تو ان کو رائٹ کر لینا ہے اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے بولنا ہے. کیونکہ جب انسان اپنی خود کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت دیکھ کر بات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے نا، تب وہ انسان کسی کی بھی آنکھوں میں بھی دیکھ کے بات کر سکتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کرنی ہے. تو آپ نے خود ہی آنسر کرنے ہیں اور خود ہی مطلب کہ کوشچن کرنے ہیں، خود سے خود کے جج خود ہی بننا ہے. تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا آپ نے پوسچر لینا ہے، کہاں پہ پوز کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے جسچر کرنا ہے. اس لیے سامنے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو آپ کو فل آف کانفیڈینس آئے گا. تو سب سے پہلے آپ انٹروڈیوس یور سیلف کا آنسر دیکھ لیں. آئی ایم اے ڈسپلنڈ، ہارڈ ورکنگ اینڈ گول اورینٹیڈ انڈیویجول. I completed my education with a strong academic background and is consistently focused on improving my analytical thinking, communication skills, and journal knowledge. My aim is to serve Pakistan through the civil service with honesty, professionalism and dedication. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے پچھلے کوشچن کے اندر آپ کے نیکسٹ کوشچن کا مطلب کوشچن چھپا ہوتا ہے کوشچن کے آنسر کے اندر. اس لیے وہ آپ کو صرف سن نہیں رہے ہوتے وہ، بلکہ آپ کا پورا ایکس رے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو اندر اتنی کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو بھی بول رہے ہیں نا اس کو پوری توجہ کے ساتھ بولنا، کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی بولتے چلے جانا ہے. کیونکہ آپ کے آنسرز کے اندر سے انہوں نے کوشچن جنریٹ کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ والا کوشچن آپ دیکھیں، آپ نے پچھلے کوشچن کے آنسر میں لکھا کہ سول انجینئرنگ کے بارے میں آپ نے بولا نا. تو اب سول سروس کے بارے میں بولا آپ نے. تو یہ دیکھیں پھر آگے انہوں نے یہی کوشچن آپ کو بنا کے پیش کر دیے. دیکھیں تو ذرا کہ آپ نے بھی بولا کہ آپ سول سروس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کی یہ جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں ذرا یہ تو بتائیں. اس کوشچن سے نا آپ کا اس چیز کو اندازہ لگائیں گے کہ آپ کی اصل نیت کیا ہے. کیا ہے صرف آپ سرکاری مراحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا تنخواہ یا اختیارات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے جذبے ہیں، مقصد ہے، سوچ ہے دوسروں کو لے کے کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسا مطلب کہ بنانا چاہتے ہیں، کیسا قانون آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے اندر ہے. وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ اس کوشچن کے آنسر میں. اس لیے آپ نے اس کا بہت ہی پازیٹیو آنسر کرنا ہے. پہلے کوشچن کو غور سے سننا ہے، انہوں نے پوچھا کیا ہے. ٹھیک ہے، انداز یہ نہیں ہے کہ بس یہی کوشچن وہ پوچھیں گے. یہ تو آپ کو مطلب ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
I want to become a civil servant because it provides an opportunity to serve society, improving governance and contribute to policy implementation. I believe public service is a responsibility, not just a career. ये जो पब्लिक सर्विस होती है ना, वो एक जिम्मेदारी है. ये देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सिर्फ मतलब आपका करियर नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसको बहुत अच्छे से आपने निभाना है. अच्छा, वो फौरन से पूछेंगे, अच्छा अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर मतलब आपके अंदर क्या कौन सी स्ट्रेटेजी पेश करना चाहते हैं कि मतलब क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं. आपके अंदर ऐसी काबिलियत है कि आप ये कर सकते हैं. तो यानी यहाँ पे बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी पॉजिटिविटी क्या है, आपके अंदर खूबियाँ क्या हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं. ठीक है, वो एक मतलब कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन करके आपकी खूबियाँ जानना चाह रहे हैं. ठीक है, तो आपने बताना है कि आई स्टडीड 8 to 10 hours daily with consistency. I prepared notes, read newspapers, practice answer writing, revised regularly and attempt mock test to improve time management. ठीक है, अब वो ये पूछेंगे कि मतलब कि व्हाट इज द, अच्छा अगर आपने इतने मतलब नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आप डेली इतना मुतालिया करते हैं 8 से 10 घंटे, तो आपको क्या पता है कि बिगेस्ट चैलेंजेस पाकिस्तान जो फेस कर रहा है नाउ वो कौन से हैं. तो ये मतलब कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानना चाह रहे होते हैं, इसलिए पूछ रहे होते हैं कि मतलब कि आप मुल्क के हालात से बाखबर भी हैं या नहीं, या सिर्फ ये एक मतलब आप लोग बस ये बोल के बता रहा है या इसको पता भी है या नहीं. तो फिर आप ये बताना है कि मतलब ये जनरल क्वेश्चन बताना है. ये नहीं है कि किसी एक खास मसले को डिस्कस करने बैठ जाओ कि हाँ जी सियासत में ये हो रहा वो हो रहा नहीं, या इकोनॉमिकली ये हो रहा है ये हो रही. आपने जस्ट जनरल नॉलेज, जनरल बात करनी है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वीक गवर्नेंस है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्लाइमेट चेंज एंड एजुकेशनल चेंजेस आर अमंग द बिगेस्ट इश्यूज. ये सारे पाकिस्तान के इश्यूज हैं. सस्टेनेबल पॉलिसीज चाहिए हमें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड क्वालिटी एजुकेशन आर एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस. अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी है. अच्छा जी, अगर ये करने के बाद अच्छा उसने कहा समझ लो, फर्ज कर लो, इफ़ यू बिकम एन असिस्टेंट कमिश्नर, कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, हमने आपको ये जॉब दे दी, तो फिर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि आप सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे. तो फिर आपने बताइए कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, रिजॉल्विंग पब्लिक कंप्लेंट्स एफिशिएंटली एंड स्ट्रेंथनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ठीक हो गया. अब उसने कहा, अच्छा आपने ये कहा कि आप अपनी जो भी मसला मसाइल होगा वो अपनी स्ट्रेंथ से हल कर देंगे, स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन से, यानी कि कायदाना सलाहियतों की वजह से. तो बताएं आपकी कायदाना सलाहियतें क्या है, यानी कि आपकी अंदर खूबियाँ क्या हैं. तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी खूबियाँ क्या हैं, आपकी पॉजिटिविटी क्या है. तो माई स्ट्रेंथ इंक्लूड डिसिप्लिन, पेशेंस, लीडरशिप, एनालिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, कि मैं हर काम को किसी भी प्रेशर के अंदर अच्छे से हल करने की सलाहियत भी रखती. अच्छा, उसने कहा ये तो तुमने अपनी खूबियां बता दी, तो फिर ये भी बता दो कि तुम्हारी बिगेस्ट वीकनेस कौन सी है, यानी व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस, क्या है तुम्हारी सबसे बड़ी खामी कौन सी है. तो ये क्वेश्चन सिर्फ इंसान को, यानी कि ये उनका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको फंसा रहा है कि आपकी खामियां हमें पता चल जाएं. खूबियां तो आपने माशाल्लाह से तरीके खुद की कर दी, तो खामियां भी पता चल जाए. नहीं, बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं क्या ये इंसान, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि वो कितने पानी में, उसे पता होता है कि मेरी खूबियाँ क्या, मेरी खामियाँ क्या. इंसान को खुद से बेहतर कोई नहीं जानता होता. इसलिए कुछ इंसान दुनिया में ऐसे होते हैं वो तनकीद सुनना पसंद नहीं करते. तो वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत है कि ये खुद के बारे में खुद ही मतलब कि कुछ बुरा कह सके, तनकीद बर्दाश्त करने की इसके अंदर सलाहियत है या नहीं. क्योंकि जाहिर सी बात है, तनकीद जो थी वो काम का हुस्न होता है, तो हर जगह पे इंसान को तनकीद का तो सामना रहता है. तो बेसिकली वो ये जानना चाह रहे हैं कि कहीं ये अग्रेसिव पर्सन तो नहीं है. तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग होते हैं वो सीधे सीधा ये बोल देते हैं कि आई एम अग्रेसिव, कि मैं गुस्से वाला हूँ.
नॉट एट ऑल. आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत पॉजिटिव वे में आपने एक्सप्लेन करना है कि आई सम टाइम स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम इंश्योरिंग परफेक्शन. ठीक है, बट आई हैव लर्न टू बैलेंस क्वालिटी विद टाइमली डिसीजन मेकिंग. कि अब वो ये कह रहा है कि मैं अपने अंदर ऐसी फोबियां, जो मेरे अंदर खामियां है ना, उनको परफेक्ट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, वो खामियां ख़त्म करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लर्न करता हूँ, अपने ऊपर वर्क करता हूँ कि मैं ये काम नहीं करना, मेरी ये खामी है. तो उसने कहा अच्छा ठीक है, विच बुक इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, कि कौन सी बुक से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं या नॉलेज हासिल कर रहे हैं, जिससे डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सेल्फ परफेक्शन आ जाए. वो कौन सी बुक है जिससे आपको, जिसका मुताला करते हैं, आपने बताया ना आपने इतना मुताला करते हैं, तो आपने कोई भी ऐसी बुक लेनी है जिसका इसका नाम लिखना है जिसके अंदर डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन की गई हो, बहुत रूल्स बताए हों कि इस चीज़ को कैसे सीखा जा सकता है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो ये है, मैंने एक बुक लिखी है, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन. ये स्टीफन ने लिखी है, ये बुक का नेम है. ठीक है, आ गया. अब वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट लीडरशिप क्वालिटी शुड अ सिविल सर्वेंट पोजेस, कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए आपकी नज़र में, कि एक सिविल सर्विस के अंदर क्या क्या होना चाहिए. उसमें फिर आपने ये बताना है कि इंटेग्रिटी, accountability, empathy, professionalism, impartiality, effective communication and evidence-based decision making. ये तो बहुत ही बड़ी बात है. evidence-based decision making, sorry. एविडेंस बोलते हैं सबूत को, बेस्ड डिसीजन मेकिंग के जब तक किसी चीज़ का सबूत नहीं ना मिल जाता तब तक किसी के बारे में कोई राय नहीं कायम करनी, या कोई भी किसी के बारे में फैसला नहीं लेना. ये नहीं है कि अपना फैसला सुना के उसके ऊपर थोप दो, नहीं. जब तक सबूत नहीं मिल जाता, चीज़ प्रूव नहीं हो जाती, तब तक इंसान, सिविल सर्वेंट को ना किसी के बारे में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए. ठीक हो गया. अब वो ये कह रहा है कि अच्छा ठीक है, ये बताएं कि where do you see yourself after 10 years, कि 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं. यानी कि वो आपके गोल्स जानना चाह रहा है कि आपका एम क्या है, आगे 10 साल में आप क्या बनना चाह रहे हैं, आपकी सोच क्या है, कि आप कुछ बनना भी चाहते हैं या बस पैसा कमाया और साइड हट गए. नहीं, आपने मतलब अपना गोल बताना कि आपकी नज़रिया क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप दुनिया के लिए क्या करना चाहते हैं. तो मतलब आप एम्बिशियस पर्सन हैं या एक काहिल इंसान है, तो आपकी बात ही आपका मतलब आपकी वर्थ होगी. ठीक हो गया. आई सॉ माई सेल्फ सर्विंग पाकिस्तान एज अ competent and ethical civil servant contributing to institutional reforms and public welfare, कि मैं मतलब कि अपने सेल्फ को इतना इम्प्रूव कर लूँगा कि मैं पब्लिक सर्विस के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ. तो वो इससे आपकी करियर प्लानिंग का अंदाज़ा हो जाएगा. तो मतलब कि इससे आप वो देखना चाहिए कि आप अपनी इस हकीकत में जिम्मेदारियों के साथ संजीदगी उनको मतलब कि निभाते भी हैं या बस जान छुड़ाने वाले इंसान हैं. तो यानी इन सारे क्वेश्चन से ना आपकी शख्सियत का एक इमेज उनके माइंड में सेट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन के आंसर्स करने से आपका मतलब कि जो कॉन्फिडेंस लेवल, बात करने का तरीका, वो हर चीज़ उनकी नज़र में मतलब कि वो आपका समझ ले एक्सरे हो चुका है. अब वो बस ये रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपसे आपका जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए, वो सिर्फ जनरल क्वेश्चन करेंगे. ये नहीं है कि मैथ के बड़े बड़े फार्मूले पूछना शुरू कर दें, ये करना शुरू कर दें, या फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा चीज़ पूछनी शुरू कर दे, या केमिस्ट्री की. नहीं, उन्होंने जनरल क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. और जनरल चीज़ों में बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में बहुत चीज़ें पूछ सकते हैं, जियोग्राफी के बारे में पूछ सकते हैं, एंड जनरल चीज़ें पूछेंगे वो. अब यहाँ मैंने कुछ चंद क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, ज़रा इनको देखिएगा. वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो वो कैनबरा में है. यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में. लार्जेस्ट ओशन जो है पैसिफिक ओशन है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में अभी भी आइन चल रहा है, वो 1973 है. आईएमएफ का स्टैंड मतलब क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। तो मतलब ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें ना सिर्फ सवाल जवाब का नाम, जो इंटरव्यू होता है ना, वो सिर्फ सवाल जवाब का नाम नहीं होता, बल्कि ये आपकी शख्सियत, आपका गुफ्तगू करने का तरीका, हाजिर जवाबी और आपका कॉन्फिडेंस चेक करने का मुकम्मल जायजा होता है। इसलिए हर सवाल के पीछे ना उनका कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन आपके आंसर में ही अगला क्वेश्चन छुपा होता है, आप गौर करें तो। लेकिन उस वक्त तो इंसान के मतलब के इंसान बहुत कंफ्यूज होता है, चाहे कितना भी क्यों ना इंसान कॉन्फिडेंस में बैठा हो, लेकिन फिर भी आपने कॉन्फिडेंस में रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ठीक है। और जो भी जवाब देना वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में देना, शाइस्ता अंदाज और पुरएतमाद शख्सियत का मुजाहरा करना है, क्योंकि यही चीज़ें वो बार बार आपकी नोट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो यानी वो आपका फुल ऑफ एक्सरे कर चुके होते हैं। तो मतलब कि अब आपने इस वीडियो की बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। अगर ये क्वेश्चन आपको यानी कि लिखने हैं तो आप राइट कर करके ना आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद को सुना सुना के इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर रहे। और अगर वीडियो को आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट बन ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।